آج ہم پڑھ رہے ہیں ماضی استمراری کی گردان۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ گزشتہ میں جاری رہنے پر دلالت کرے، جیسے وہ ضرب لگاتا تھا یا وہ ضرب لگایا کرتا تھا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے ماضی استمراری کی گردان بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے فعل مضارع کی گردان بدلتی جائے گی، اسی طرح کانا کا صیغہ بھی بدلتا جائے گا۔ گردان بنانے کے لیے ہم پہلے ٹیبل ڈرا کریں گے۔ تو ٹیبل ڈرا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم 4 کالم لگائیں گے، 1 2 3 4۔ یہ ہم نے 4 کالم لگا لیے اور ان کو اوپر نمبر دے دیے 1 2 3 4۔ اس کے بعد کالم 4 اور کالم اے سے گزرتی ہوئی ایک رو لگائیں گے جس کو ہم اے کا نام دیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اگلی رو بی لگائیں گے جو کالم 4 سے شروع ہوگی اور کالم 1 سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگلی رو پھر اے لگائیں گے۔ اے رو کون سی ہے؟ جو کالم 4 اور کالم اے سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگلی رو پھر بی ہوگی۔ بی رو کون سی ہے؟ جو کالم 4 سے شروع ہوتی ہے اور کالم 1 سے گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رو ہم لگائیں گے جس کو بھی ہم اے کا نام دیں گے اور یہ کالم 4 اور کالم اے سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر واحد لکھیں گے، جو دوسرا ہے یہاں پر تثنیہ اور جو تیسرا ہے یہاں پر ہم جمع لکھیں گے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ یہاں پر مذکر، یہاں پر مؤنث، مذکر، مؤنث اور یہاں پر متکلم، یہاں پر غائب لکھ دیں گے اور یہاں پر ہم حاضر لکھ دیں گے۔ اب اگر ہم نے صیغہ دیکھنا ہو تو صیغہ دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، جس بھی کلمہ کا صیغہ دیکھنا ہو سب سے پہلے اس کے اوپر دیکھتے ہیں، پھر رائٹ دیکھتے ہیں اور پھر لیفٹ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہاں پر جو بھی کلمہ آئے گا ہم نے اس کا صیغہ دیکھنا ہے تو کیا کریں گے، سب سے پہلے اوپر جائیں گے، تثنیہ، رائٹ مذکر اور لیفٹ غائب۔ تو کیا صیغہ ہوگا، تثنیہ مذکر غائب۔ اگر میں پوچھوں یہاں پر کون سا صیغہ آئے گا تو آپ کیا کہیں گے، جمع مذکر حاضر۔ یہاں پر کون سا صیغہ آئے گا، واحد متکلم، اور لیفٹ سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صیغہ دیکھنے کے لیے ہم نے جس کلمہ کا صیغہ دیکھنا ہے اس خانے میں جائیں گے، سب سے پہلے اس کے اوپر دیکھیں گے، پھر اس کے رائٹ دیکھیں گے اور پھر اس کے لیفٹ دیکھیں گے۔ اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو کس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا، اگر فعل ماضی ہے یہاں پر جو بھی کلمہ آئے گا تو یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی ترجمہ کریں گے، اس ایک مذکر نے ضرب لگائی، غائب سے اس واحد ایک مذکر نے ضرب لگائی۔ اگر مضارع ہے تو کیا ترجمہ کریں گے، وہ ایک مذکر ضرب لگاتا ہے یا ضرب لگائے گا۔ اگر لام تاکید نون ثقیلہ ہے تو ترجمہ کریں گے، وہ ایک مذکر ضرور بر ضرور ضرب لگائے گا۔ اگر لام تاکید نون خفیفہ ہے تو ترجمہ کریں گے، وہ ایک مذکر ضرور ضرب لگائے گا۔ اب ہم باقاعدہ گردان بنانی شروع کرتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے ماضی استمراری کی گردان بن جاتی ہے۔ رکھیں فعل مضارع فعل ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ پہلا صیغہ کون سا ہے، ضرب۔ فعل مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے ضرب کو تمام صیغوں میں لکھ دیں گے۔ یہ جی ہم نے فعل مضارع بنانے کے لیے تمام صیغوں میں ضاد را با لکھ دیا ہے۔ پہلا کلمہ ضاد جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے تمام صیغوں میں ساکن کر کے لکھا ہے۔ دوسرا کلمہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تمام صیغوں میں اس کے نیچے زیر رہے گی، یہ زیر باب کی مناسبت کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد جو آخری کلمہ ہے لام کلمہ با، اس کو ہم نے کوئی حرکت نہیں دی۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان تمام صیغوں کے شروع میں حروف عطین الف تا یا نون میں سے کوئی حرف لے کے آئیں گے۔ حروف عطین فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور یہ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ یہ جی تمام صیغوں کے شروع میں
अलामात मुजारे लगा दी। वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में अलिफ लगा दिया, जमा मुतकल्लिम के शुरू में नून लगा दिया, हाजिर के तमाम सीगों के शुरू में ता लगा दी, वाहिद मोनस गायब और तस्निया मोनस गायब के सीगों के शुरू में भी ता लगा दी। बाकी जो 4 सीगे बचे हैं उनके शुरू में हमने या का इजाफा कर दिया। ये जो अलामात मुजारे हैं इनको मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया है ताकि हमें याद भी रहे कि ये अलामात मुजारे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 सीगों के आखिर में पेश दे देंगे, रफ़ा दे देंगे। वो 5 सीगे कौन कौन से हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। ये जी हमने 5 सीगों के आखिर में पेश दे दी। यदरिबू, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू, नदरिबू। इस तरह ये हमारे 5 सीगे मुकम्मल हो गए। अब हमने क्या किया है कि ये जो 5 मरफू सीगे हैं जिनको हमने पेश दी उनको हमने ब्लू कलर में लिख दिया है ताकि हमें याद रहे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि फेल मुजारे के 7 सीगों के आखिर में नूने इराबी लाएंगे। तो ये जी हमने 7 सीगों के आखिर में नूने इराबी लगा दिया। ये 4 तस्निया के, 2 जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर के और 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर का। तस्निया के 4 सीगों में नूने इराबी को ज़ेर दी और उससे पहले हमने अलिफ का इजाफा किया। ये अलिफ नून तस्निया की अलामत है। तस्निया की मुनासबत से अलिफ नून से पहले ज़बर का इजाफा किया। जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर के नून इराबी से पहले वाव का इजाफा किया। वाव नून हम पढ़ते आए हैं पहले से भी कि वाव नून जमा मुज़क्कर की अलामत है। जमा की मुनासबत से वाव नून से पहले लाम कलिमा पर पेश का इजाफा किया। ये जो एक कलिमा है वाहिद मुअन्नस हाजिर का, इसमें नून इराबी से पहले हमने या का इजाफा किया। पूरी कलाम अरब में एक कलिमा ऐसा है जिसके आखिर में या नून आता है लेकिन वो वाहिद कलिमा है, वो है वाहिद मुअन्नस हाजिर का। या नून वैसे तो जमा मुज़क्कर की अलामत है लेकिन ये एक वाहिद कलिमा है वाहिद मुअन्नस हाजिर जिसमें या नून वाहिद के आखिर में आ रहा है। इस सीगा में या नून से पहले या की मुनासबत से ज़ेर लगाएंगे। इस तरह हमारे 5 और 7 12 सीगे मुकम्मल हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 2 सीगे हमारे बचे हैं जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, इनके आखिर में नून निस्वा लाएंगे, नून ज़बर ना का इजाफा करेंगे। नून निस्वा वो नून होता है जो जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के आखिर में आता है। इसको नून निस्वा इसलिए कहते हैं कि ये कभी नहीं गिरता, ये हमेशा अपनी हालत में कायम रहता है। नून इराबी इराब बदलने की सूरत में गिर सकता है जबकि नून निस्वा कभी भी नहीं गिरेगा। ये जी 2 सीगों के आखिर में हमने नून निस्वा का इजाफा कर दिया जिसको हमने रेड कलर में लिखा है। एक और सीगा जो वाहिद मुअन्नस हाजिर का है उसकी या को भी मैंने रेड कलर में लिखा है ताकि हमें याद रहे। इस तरह हमारी फेल मादी मारूफ से फेल मुजारे मारूफ की गर्दान मुकम्मल हो गई। तो पढ़ा जाएगा यदरिबू यदरिबानी यदरिबूना, तदरिबू तदरिबानी यदरिबना, तदरिबू तदरिबानी तदरिबूना, तदरिबीना तदरिबानी तदरिबना, अदरिबू नदरिबू। तो हमने काना से फेल माजी की गर्दान बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो काना है इसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सीगे में उसी तरह लिख देंगे। वैसे तो हमने पढ़ा था कि पहला सीगा होगा दौराबा नासारा सामिया, उसमें जो आइन कलिमा है उस पर कोई हमने ज़बर ज़ेर पेश कोई और हरकत देखी थी, लेकिन यहाँ पर ये अलिफ आ रही है और अलिफ पर कोई हरकत नहीं है। तो ये जो काना पहला सीगा है ये कैसे बना इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, काना को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सीगे में वैसे ही लिख दिया। उसके बाद छठे सीगे में काना की बजाय कुन लिखा। अब ये कुन कहाँ से आया इसकी भी हम वजाहत बाद में करेंगे। अब ये जो कुन है जैसे बा को साकिन करके छठे सीगे में लिखा था और फिर उसी तरह बा को साकिन करके तमाम सीगों में लिख दिया था, इसी तरह अब यहाँ पर भी हम नून को साकिन करके तमाम सीगों में लिख देंगे। यहाँ पर कुन 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 कुन, ये जी हमने
साकिन करके लाम कलिमा को तमाम सीगों में लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, काना को पहले सीगे में भी लिखा, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी और पाँचवें में भी। छठे में हमने जाके कुन लिखा और अब इस कुन को अगले तमाम सीगों में लिख दिया। देखें, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम किया है। हमने काना से फ़िल माजी की गर्दान बनानी थी, तो काना को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सीगे में लिखा। छठे से हमने तमाम सीगों के आखिर में कुन लिख दिया है। अब देखें उसके बाद हम क्या करेंगे। अब हम ये करेंगे कि पहला सीगा उसी तरह रहने देंगे, जैसे दौराबा उसी तरह काना, पहला सीगा उसी तरह रहने दिया। दूसरे सीगे के आखिर में हमने अलिफ का इजाफा किया था, दौराबा दौराबा, यहाँ पर भी काना। वहाँ पर भी तीसरे सीगे के आखिर में हमने वाव अलिफ का इजाफा किया था, दौराबा दौराबा दौराबू, काना कानू, वाव अलिफ का इजाफा और वाव की मुनासबत से नून पर यानी लाम कलिमा पर हमने पेश दी थी, तो बन गया काना कानू। पहला सीगा वैसे ही लिखा, दूसरे सीगे के आखिर में हमने अलिफ का इजाफा किया, तीसरे सीगे के आखिर में हमने वाव अलिफ का इजाफा किया और वाव अलिफ हमने पढ़ा था जमा मुज़क्कर की अलामत है और वाव की निस्बत से हमने नून पर पेश दे दी। चौथे सीगे के आखिर में हमने ता साकिन का इजाफा किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे दौराबा दौराबा दौराबू दौराबत, काना कानू कानत। चौथे सीगे के आखिर में हमने वाहिद मोनस की अलामत ता साकिन का इजाफा किया, बन गया कानत। पाँचवें सीगे के आखिर में हमने काना के आगे ता अलिफ ता का इजाफा किया, कानता। काना कानू कानत कानता, जैसे दौराबा दौराबा दौराबू दौराबत दौराबता। देखें, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया। पहला सीगा वैसे लिखा, दूसरे सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा किया, तीसरे सीगे के आखिर में वाव अलिफ का इजाफा किया, वाव की मुनासबत से नून पर पेश दी। चौथे सीगे के आखिर में ता साकिन का इजाफा किया और पाँचवें सीगे के आखिर में ता अलिफ ता का इजाफा किया। ये बात ज़हन में रखें कि गर्दान में जितना मुश्किल काम था वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने कुन को तमाम सीगों में लिख दिया। छठे सीगे के लिए हमने कुन के आखिर में नून ज़बर ना का इजाफा किया, उसी तरह जैसे हमने दाराबा की गर्दान में पढ़ा था, दारब ना, कुन ना से ये बन जाएगा कुन्ना। अब उसी कुन को हमने आगे तमाम सीगों में लिख के, तो हाजिर के सीगों के आखिर में हमने ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना का इजाफा करना है। जैसे हमने ज़मायर मुत्तसिला पढ़े थे, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, बिल्कुल उसी तरह अब का की जगह ता है, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। या हमने ज़मायर मुनफसिला पढ़े थे, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, तो ये जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, कुन के आगे ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना का इजाफा किया, तो बन गया कुनता कुनतुमा कुनतुम कुनती कुनतुमा कुनतुन्ना। जैसे वहाँ पे आया था दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना। अब उसके बाद मुतकल्लिम के सीगे बनाने हैं, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए ता साकिन भी आ गई, ता पर ज़बर भी, ज़ेर भी, और अभी तक कौन सी ता रहती है, पेश वाली। तो यहाँ पर हमने कुन के आगे पेश वाली ता लगा दी, कुन तू, और उसके बाद हमने कुन के आगे नून अलिफ ना का इजाफा किया। ये नून अलिफ ना जमा मुतकल्लिम की अलामत है, कुन्ना इहदीना। तो अब ये कुन के आगे नून अलिफ ना का इजाफा किया, तो ये बन गया कुन्ना। तो गर्दान बनेगी काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुनता कुनतुमा कुनतुम कुनती कुनतुमा कुनतुन्ना कुनतु कुन्ना। देखें, हमने क्या किया, पहला सीगा वैसे लिखा, दूसरे सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा किया, तीसरे के आखिर में वाव अलिफ का इजाफा किया, वाव की मुनासबत से नून पर पेश लगा दी, चौथे के आखिर में वाहिद मोनस की अलामत ता साकिन का इजाफा किया, पाँचवें के आखिर में ता अलिफ ता का इजाफा किया। कुन को तमाम सीगों में लिख दिया, जमा मोनस गायब के सीगे के आखिर में नून ज़बर ना का इजाफा किया, ये जो जमा मोनस की अलामत है कुन्ना। उसके बाद हमने हाजिर के सीगे बनाने के लिए ता तुमातुम ती तुमातुन्ना का इजाफा किया, कुनता कुनतुमा कुनतुम कुनती कुनतुमा कुनतुन्ना। उसके बाद हमने कहा कि वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाने के लिए हमने
जो ता रहती थी उसको लगा दिया ज़ेर ज़बर साकिन और यहाँ पर पेश वाली ता लगा दी तो बन गया कुंतु। और यहाँ पर कुन के आगे हमने नून अलिफ ना का इजाफा किया, ये वो नून अलिफ ना है जो जमा मुतकल्लिम की अलामत है। इस तरह हमारी काना से फ़ेल माजी की गर्दान मुकम्मल हुई। अब हमने एक बात कही थी कि हम देखेंगे कि काना और कुन्ना ये कैसे बने हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हरूफ होते हैं, जैसे दरबा में दौद राबा, फ़अला में फ़ा आइन लाम, नसरा में नून सौद रा। इसी तरह काना असल में कावाना था। अरबी का कायदा ये है कि अगर फ़तहा के बाद यानी ज़बर के बाद वाव या मुतहर्रक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदल देना चाहिए। फ़तहा के बाद वाव या ये देखें, ये काफ पर फ़तहा है, उसके बाद वाव या मुतहर्रक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदल देना चाहिए। वो शराइत इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये जो वाव है काफ पर फ़तहा यानी ज़बर है, उसके बाद वाव या मुतहर्रक है तो उसे अलिफ से बदल दिया तो ये बन गया कावाना से काना। काफ पर ज़बर, ज़बर के बाद अगर वाव या पर ज़बर आ जाए तो फिर इस वाव या को अलिफ से बदल देते हैं। कावाना से ये काना बन गया। अब आपका वो छठा सीगा कुन्ना असल में कवन्ना था। कुन्ना कैसे बना? जैसे कावाना कावाना कावानू कावानत कावानता कवन्ना, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना। लेकिन अगर हम उसको हरूफ असलिया के साथ पढ़ें तो फिर कावाना कावाना कावानू कावानत कावानता कवन्ना। तो ये कवन्ना से कुन्ना कैसे बना, तो आइए देखते हैं। कायदा ये है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रक मा कबल फ़तहा हो तो हर्फ इल्लत की हरकत मा कबल को दे देंगे। अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रक, ये जो वाव इसमें हर्फ इल्लत है ये मुतहर्रक है, अगर इसका मा कबल फ़तहा हो, ये देखिए इसका मा कबल फ़तहा यानी ज़बर हो तो क्या करेंगे, इसकी हरकत मा कबल को दे देंगे। तो ये जो हरकत वाव की हरकत है ये मा कबल को दे दी, तो वहाँ पर पहले भी ज़बर है अब भी ज़बर ही रही। वाव हरफ इल्लत है, मुतहर्रक है और उससे पहले फ़तहा यानी ज़बर है, तो हमने वाव की हरकत मा कबल को दे दी। तो वाव की हरकत मा कबल को जब दी तो ये वाव साकिन हो गया, बन गया कऊ और आगे नून भी साकिन और नून पर ज़बर आ गई। उसके बाद अब क्या करेंगे, वाव इज्तिमाई साकिनैन के सबब गिर जाएगा। देखिए अब दो साकिन इकट्ठे आ गए, वाव भी साकिन और नून भी साकिन। अब दो साकिन इकट्ठे आ गए जिनको पढ़ना मुश्किल है, तो अब हम क्या करेंगे, वाव जो हरफ इल्लत है इसको गिरा दिया जाएगा। अब ये बन जाएगा कन्ना, जब ये वाव को गिराया तो ये बन जाएगा कन्ना। अब कलिमा को वाव की मुनासबत है, चूँकि यहाँ पर वाव को गिरा दिया है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर कौन सा हरफ हमने गिराया है, तो इसलिए वाव की मुनासबत से हमने काफ पर पेश दे दी, तो ये कन ना से बन जाएगा कुन्ना। अब देखें कायदा अरबी का ये है कि दो हम जिन्स हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में जम कर देंगे, तो ये कुन्ना से बन जाएगा कुन्ना। ने लिखा था कुन्ना, अब हमने उसी कुन को तमाम सीगों में लिख के तो आगे ता तुमातुम ती तुमातुन्ना का इजाफा किया था और जमा मुतकल्लिम के सीगे के आखिर में वही कुन और नून अलिफ ना जब आया तो फिर ये भी कुन्ना बन गया। तो गर्दान है काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। अब आप जान गए कि काना असल में कावाना था और कुन्ना असल में कवन्ना था। तो बहुत आसान और सिंपल अंदाज में ये है कि आप सबसे पहले काना की मुकम्मल गर्दान लिख दें, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। उसके बाद आगे फ़ेल मुज़ारे की मुकम्मल गर्दान लिख दें, यदरिबु यदरिबानी यदरिबूना तदरिबु तदरिबानी यदरिबना तदरिबु तदरिबानी तदरिबूना तदरिबीना तदरिबानी तदरिबना अदरिबु नदरिबु। अब गर्दान इस तरह से पढ़ी जाएगी, काना यदरिबु काना यदरिबानी कानू यदरिबूना कानत तदरिबु कानता तदरिबानी कुन्ना यदरिबना कुंता तदरिबु कुंतुमा तदरिबानी कुंतुम तदरिबूना कुंती तदरिबीना कुंतुमा तदरिबानी कुंतुन्ना तदरिबना कुंतु अदरिबु कुन्ना नदरिबु।
फ़ेल मुज़ारे की गर्दान बनाने का तरीका आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो कि वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसी तरह काना की गर्दान बनाने का तरीका भी आप पहले से जान चुके हैं, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। इन दोनों गर्दानों के बनाने के तरीके का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काना यदरिबु, तो सीगा होगा वाहिद मुज़क्कर गायब। तर्जमा करेंगे, वो एक मुज़क्कर ज़रब लगाया करता था। कुन्ना यदरिबना, ये कौन सा सीगा है? जमा मुअन्नस गायब। तो तर्जमा क्या करेंगे? वो सब मुअन्नस ज़रब लगाती थीं या लगाया करती थीं। कुन्ता तदरिबु, ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तो क्या तर्जमा करेंगे? तू एक मुज़क्कर ज़रब लगाता था या लगाया करता था। कुन्तु अदरिबु, कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम। क्या तर्जमा करेंगे? मैं ज़रब लगाता था या लगाया करता था। अब गर्दान इस तरह से पढ़ी जाएगी, काना यदरिबु, काना यदरिबानी, कानू यदरिबून, कानत तदरिबु, कानता तदरिबानी, कुन्ना यदरिबना, कुन्ता तदरिबु, कुन्तुमा तदरिबानी, कुन्तुम तदरिबून, कुन्ती तदरिबीन, कुन्तुमा तदरिबानी, कुन्तुन्ना तदरिबना, कुन्तु अदरिबु, कुन्ना नदरिबु। ये काना और कुन्ना कैसे बना, ये हम काना की गर्दान में जान चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब गर्दान इस तरह से पढ़ी जाएगी, काना यदरिबु, काना यदरिबानी, कानू यदरिबून, कानत तदरिबु, कानता तदरिबानी, कुन्ना यदरिबना, कुन्ता तदरिबु, कुन्तुमा तदरिबानी, कुन्तुम तदरिबून, कुन्ती तदरिबीन, कुन्तुमा तदरिबानी, कुन्तुन्ना तदरिबना, कुन्तु अदरिबु, कुन्ना नदरिबु।